Hi students, today we will discuss about refraction of light. This is the new topic for class 10th and it is applicable for class 12 also. So let us begin with the basics of refraction of light. Uh, from in class 7 or 8, it is mentioned here what is refraction of light. Actually, when a ray of light normally travels in air, its speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second, approx. The speed of light in air or vacuum, we are taking equal here, whatever the speed of light in air, uh, the same approx is equal to the speed of light in vacuum. So speed of light in air is approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay. Now, actually, what I want to tell you is that if the light travels in air, then its speed is this much. If the light travels in water or in any transparent medium, is the speed of light same? The answer is no. The speed of light changes medium to medium. Once medium changes, the speed of light also changes. Okay? If the density of medium increases, the speed of light decreases. So density means we are not talking about mass density, we are talking about optical density. If the medium is optically denser, the speed of light is lower. The speed of light decreases. So this you have to remember. So once the light travels from air to glass or air to water, the speed of light, whatever it was in air, the same will be not in water or same will be not in glass. So due to change of the speed, uh, there is a bending of ray takes place, and this is known as refraction of light. So once the ray of light travels from one medium to another medium, their speed changes, and this results the bending of ray of light. And this phenomenon is known as refraction of light. The refraction will take place only if the medium changes. Medium changes, the speed of light will change, and this causes the bending of ray of light. Now, one more thing I'll discuss before we start about diffraction in detail. Wave speed in class 9 about sound wave you might have learned. Wave speed, because light is also a wave. So wave speed, I'm talking about C. Wave speed is product of frequency and wavelength. Since the speed of light changes due to change of medium, we have had two parameters which decide the speed of light. One is frequency, other one is wavelength. Now the question comes here, if C will change, is it due to change of wavelength? If C will change, is it due to change of frequency? If C will change, is it the change of both frequency and wavelength? So you have to be clear about this idea. The frequency of a wave is independent of medium. That means it does not depend on the medium. So this line is most important line. You note down this. The frequency of a wave is independent of
of the medium through which it travels. It travels. So these lines clears you that the speed of light, naturally speed of light changes due to change of medium, but the frequency of the same light will not change. Whatever the frequency in air, the same frequency will be in water, same frequency of light will be in air if it travels through both the medium. Now, so it is clear that then why speed of light changes? The speed of light changes, it is due to change of wavelength. So you write down the speed of light, the wavelength, the wavelength, the wavelength depends on depends on the medium through which it travels, through which it travels. ओके अब सपोज करो कि आपको कुछ दिया हुआ फ्रीक्वेंसी कि 10 का पावर 14 हर्ज फ्रीक्वेंसी है किसी लाइट का और उसका वेवलेंथ जो है वो तुमको 4 into 10 to the power -8 meter, it was 6 you can consider 4000 एंगस्ट्रम है किसी लाइट का वेवलेंथ इतना है ये इतना है तो ये लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल कर रहा है तो एयर से वाटर में ट्रैवल करने से इसका फ्रीक्वेंसी पर क्या असर होगा तो आपने बताना फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम वेवलेंथ पे क्या असर होगा तो चूंकि स्पीड आपको पता है कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगा एयर से वाटर में जाने से तो वेवलेंथ विल आल्सो डिक्रीज ओके अब क्या वैल्यू आएगा ये आपको बेसिक्स जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा सो एक चीज अभी आप बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखें कि जो लाइट का स्पीड होता है तो व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट विल चेंज ओके एंड ये चेंज क्यों हुआ दिस चेंज अकर्स ड्यू टू द चेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सोर्स डिसाइडेड फैक्टर है मतलब सोर्स विल डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए आपको सोर्स को बदलना पड़ेगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ओके मीडियम से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता ये तो अभी तक की बेसिक्स है इसको आप हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखें नाउ यू कम हियर व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो वो तो डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छा से लिखा है सेम डेफिनेशन यू कैन राइट हियर द बेंडिंग ऑफ लाइट not the bending of a ray of light when it travels from one medium to another medium when it propagates better to write down this one propagates from one medium to another medium from one medium to another medium is called refraction of light refraction of light okay so when the ray of light travels from one medium to another medium it bends and this is called what refraction of light why does it bend so first line you can write down one line you can write down the speed of light is not same whatever the speed of light in air the same is not the speed in the medium when it enters so you have to remember this one now you come here
Next is something you have to understand. Consider this is the interface of two medium. This is a medium one. No, you consider two. This is medium one. A ray of light comes here like this. This is called incident ray, like in reflection of light also you have learned. Incident ray. And this point of interface where the ray of light is incident is called point of incidence. So consider this point is P. P is point of incidence. Point of incidence. Okay. Now, what you do at interface, at the point of incidence, you draw a normal. This is your normal. Okay. Now, the incident ray makes an angle I with a normal, and this angle is known as angle of incidence. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये सब पढ़े थे इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ यू लुक अब ये लाइट रे स्ट्रेट नहीं जाएगा बेंड होगा ठीक है तो बेंड कैसे होता है ये हम लोग पढ़े हैं पहले से कि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे तो वो नॉर्मल की तरफ जाता है ठीक है इफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लिख लें if a ray of light travels from rarer medium to denser medium if a ray of light travels from rarer medium to denser medium denser medium denser medium then it bends towards the normal drawn at the point of incidence ठीक है बस एक याद रखें दूसरा आप खुद ही कर सकते हैं कि अगर रेडर से डेंसर में जाए तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगा अगर उल्टा हो डेंसर से रेडर में जाए देन योर रिफ्रैक्टेड रे दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे ओके सो तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा कब जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा उल्टा अगर होगा इफ द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे तो वो भी आप नोट कर लेंगे ओके नाउ अब एक दो चीज यहां पे जान लें कि अगर ये मीडियम सेम होता तो लाइट रे जो है वह स्ट्रेट निकल जाता क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होता है जब मीडियम बदलता है हम फिर सेम मीडियम अगर ये ट्रैवल करता तो लाइट रे का जो डायरेक्शन होता है वो इधर की तरफ होता है हम ब्रोकन लाइन से दिखा रहे हैं सीधा सीधा लेकिन मीडियम के कारण इसको जाना चाहिए था ऐसे मीडियम के कारण वो ऐसे बेंड हो गया तो ये जो एंगल है जितना एंगल से ये बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल दैट इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट ठीक है तो एक टर्म लिखें डेविएशन इसको हम डेल्टा वर्ड से डिनोट करते हैं डेल्टा डेविएशन
the angle by which a ray of light bends due to refraction is known as deviation of ray of light. तो जब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करो तो बेंड होगा। तो जितना एंगल से वो मुड़ा, एक्चुअली जाना चाहिए था सीधे, वो ऐसे मुड़ गया। तो जितना एंगल से चाहे उधर मुड़े चाहे इधर मुड़े, किधर भी तो मुड़ना ही है अगर मीडियम चेंज होगा तो जितना एंगल से वो बेंड होता है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, हाँ एक और एंगल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे makes an angle with the normal. So this is your R. The refracted ray makes an angle with the normal. It's called angle of refraction. So एक चीज अगर हम आपसे पूछे कि जो बेंडिंग होता है ना, वो ध्यान देना कि ये जो बेंडिंग है वो हर एक कलर का अलग अलग होता है। ये डेविएशन जो होता है हर एक कलर का अलग अलग होता है। जैसे मान लो रेड कलर को ऐसे ट्रैवल करा है, ठीक है, वो कुछ एंगल से बेंड हुआ, डेविएशन उसका नोट कर लिए। अगर उसे ब्लू कलर को उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम लाते हैं तो उसका डेविएशन अलग होता है। ठीक है, तो सब कलर सेम फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ यू चेंज द कलर द वैल्यू ऑफ डेविएशन विल चेंज। तो अब आप सोचो कि अगर डेविएशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कलर डिपेंडेंट हो जाएगा। जिस रे का डेविएशन ज्यादा होगा उस रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, मोर इज द डेविएशन लेस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट यू राइट। मोर is the deviation, more is the deviation, less will be angle of refraction। ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगा। अगर डेविएशन ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपको कम होगा। और हर एक कलर जो होता है लाइट का, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल कराओ, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट कराओ, तो यू विल फाइंड दैट द डेविएशन फॉर ऑल कलर्स आर डिफरेंट। ठीक है, नोट करने के लिए सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट कलर का, नोट कर ले। द वायलेट कलर सफर्स मैक्सिमम डेविएशन आउट ऑफ ऑल विजिबल लाइट। जितने भी आपके विजियोर हैं उसमें वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर कोई पूछ दे कि वायलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब क्या होगा, तो जब डेविएशन सबसे ज्यादा है तो नेचुरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका सबसे कम होगा। अगर आप सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सारे रे को इंसिडेंट कराते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कम हियर। कुछ बातें हम डेंसर और रेयर मीडियम की बात करें। तो डेंसर जो है और रेयर, तो नॉर्मली आप डेंसिटी पढ़े हो, मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। हमें एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कुछ आइडिया आपको देना है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, ये मास डेंसिटी से कम है।
अब इसको कैसे हम डिसाइड करते हैं? मान लो हमारे दो मीडियम दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड दैट व्हिच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। तो क्या चीज आप देखोगे, कौन सा ऐसा चीज आपको चाहिए जिसे आप ये पता कर लो कि भाई ये मीडियम जो है ऑप्टिकली डेंसर है और ये मीडियम जो है ऑप्टिकली रेयरर है। डेंसर एरर जब ये होगा तो दो मीडियम तो होएगा ही, तभी ना आप कंपेयर कर सकते हो कि एक भाई डेंसर है दूसरा रेयरर। हाउ यू फाइंड? इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो मास डेंसिटी वहां नहीं खोजना, ये नहीं खोजने लगा कि भाई इसका डेंसिटी कितना है उसका डेंसिटी कितना है, वो डेंसिटी नहीं। आपको खोजना क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि ये है एक मीडियम वन, ठीक है, ये है मीडियम टू। आपसे पूछेगा इस दोनों मीडियम में कौन डेंसर मीडियम है, तो आप क्या क्या डेंसिटी खोजेंगे? आप पूछेंगे कि भाई मीडियम की डेंसिटी बताएं। नो, डोंट आस्क फॉर डेंसिटी, आस्क फॉर स्पीड ऑफ लाइट। आप पूछें कि ये बताएं कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो मान लेते हैं कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 1 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, you're not asked to supposed to ask what is the density. Don't go for density. We are not talking about mass density, we are talking about optical density. तो हमें वन और टू मीडियम दे दे and somebody will ask you, tell me which medium is optically denser. तो ask for, sir, what is the speed of light in both the medium? Then only you can decide which one of them is optically denser, which one of them is optically rarer. ठीक है, याद रखें कि जिस मीडियम में लाइट का स्पीड जितना ही कम हो वह मीडियम ऑप्टिकली उतना ही डेंसर होता है। ठीक है, लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, मोर विल बी इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। स्पीड ऑफ लाइट अगर कम तो आप बताना इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यू राइट डाउन ये, लेसर is the speed of light in a medium, lesser is the speed of light in a medium, more will be its optical density। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, नॉर्मली आप देखोगे कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होता है, नॉर्मली बता रहे हैं, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होता है, नो डाउट। एक ईथर को छोड़ दें, ईथर में गड़बड़ होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए हमने बोला ऑप्टिकल डेंसिटी देखने के लिए मास डेंसिटी से भी आप गेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये नॉर्मली आप पाओगे कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है। ओके, लेकिन आपको बेस्ट जो पैरामीटर है टू डिसाइड विच वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यू आस्क फॉर स्पीड ऑफ लाइट ओनली। ठीक है, तो ईथर के केस में हो सकता है मास डेंसिटी कम हो लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उसका ज्यादा होता है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना। ईथर, ईथर ये सुना भी होगा आपने। तो हमको देखना है स्पीड ऑफ लाइट, कुछ नहीं देखना, मास डेंसिटी छोड़। तो ये देखें क्या कि मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट कम है कंपैरिजन टू वन, तो हम बोलेंगे टू विल बी ऑप्टिकली डेंसर देन वन। वन के अपेक्षा रिस्पेक्ट में टू का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है, स्पीड कम, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ओके, नाउ यू कम नेक्स्ट टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, law of refraction. Law of refraction, look here, law of refraction.
पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे refracted ray and normal at point of incidence, normal at point of incidence lie in the same plane, देखो इसका मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे अगर बोर्ड पे लेटा है तो रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड पर ही लेटा रहेगा और नॉर्मल भी बोर्ड पर ही लेटा रहेगा, एक ही प्लेन में होगा। ये नहीं कि नॉर्मल ऐसे हो गया हवा में, एक अगर बोर्ड पे है, एक अगर जमीन से होके जा रहा है तो दूसरा भी जमीन से ही होके जाएगा और तीसरा भी जमीन से। सो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन कौन है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। फर्क ये था कि यहाँ रिफ्रैक्टेड रे की जगह वहां पे रिफ्लेक्टेड रे होता है। पार्ट बी, ये जो है देखो, द रेशियो ऑफ, इसको वर्ड में भी आप लिख लेना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ, लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of refraction to the ratio of sine of angle of refraction नहीं, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction sine of angle of refraction is constant called refractive index. Okay, so mathematically it is easy to write sin I by sin R is equal to refractive index mu. Normally nowadays the symbol of refractive index is written as n, nu. Okay, now what is that? अब देखो इसकी बात कर लें बढ़िया से और समझ लें कि रिफ्रैक्शन क्या है, म्यू। जैसे मान लेते हैं ये इंटरफेस है दो मीडियम को, दिस इज योर मीडियम 2, दिस इज योर मीडियम 1। लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऐसे, ये आपको ट्रेवल किया ऐसे, दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज R। ठीक है, तो साइन I बाय साइन R जो होगा, तुम ध्यान से देखना है, साइन I by sin R, this is refractive index of second medium, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिस रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम इंटर करेगा उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। तो किस में इंटर कर रहा है? सेकंड में, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके,
अगर आपको उल्टा करना है इसी को से, इसी में अगर आप μ12 लिखेंगे तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। क्या? साइन आर बाय साइन आई, रिवर्स। तो अगर इसका इसका रिलेशन अगर आप देखोगे तो उल्टा है। क्या μ21 इज इक्वल टू μ12? आपके जवाब होगा नो, इट इज अ रेसिप्रोकल। μ21 इज रेसिप्रोकल ऑफ μ12। अगर इस रेसिप्रोकल को फिर से रेसिप्रोकल कर दें तो फिर सीधा हो जाएगा। तो एक रिलेशन आप स्टैब्लिश करो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। टेल मी, μ21 इंटू μ12 बराबर क्या होगा? देखो साइन आई बाय साइन आर, वो है साइन आर बाय साइन आर, क्या होगा? तो सारे तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका आंसर होगा 1। ओके, तो μ21 इज 1 अपॉन μ12। दिस रिलेशन यू रिमेंबर। ठीक है, ध्यान दें, बहुत आसान है। μ12 μ21। ओके, अब हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब जैसे मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कुछ होगा। क्या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में वही होगा? जैसे मान लो कोई ग्लास है हवा में, पूछे ठीक है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, मान लेते हैं 1.5 है। ओके, अगर आप उसी ग्लास को पानी में डाल दो तो पूछे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5 ही होगा या बदलाव आएगा? तो आपने जवाब देना बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये ग्लास है तो इसके चारों तरफ क्या है? एयर। तो लाइट रे जो है इसमें इंटर करेगा एयर टू ग्लास, ठीक है। लेकिन जब इसी ग्लास को आप पानी के अंदर में डाल दिए तो लाइट रे जो है इंटर करेगा वाटर टू ग्लास, तो इसमें तो फर्क आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, तो उसके चारों तरफ कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सराउंडिंग बदल दोगे तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, अगर सराउंडिंग एयर है, तो फिर पानी में डालने से 1.5 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे जब ग्लास में इंटर कराओगे तो आपको पानी से ग्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें बदलाव आएगा। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलाव आएगा तो नेचुरली जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो है वो भी चेंज होगा। तो ये ध्यान में रखना। पहला पॉइंट नोट करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स सराउंडिंग। ये दो पॉइंट आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium depends on its surrounding। सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का चेंज हो जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछेगा कोई ग्लास हवा में है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है एक्स है, पानी में डालने से क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स ही रहेगा या बदलेगा? आपने जवाब देना बदलेगा और घट जाता है, ये याद रखना। पानी में डालने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ही घट जाएगा। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट जो इसमें और इंपॉर्टेंट है कि इफ यू चेंज द सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल चेंज। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम also depends on color of light used। अब आप सराउंडिंग नहीं चेंज कर रहे हो, सराउंडिंग को फिक्स कर लिए, अब कलर ऑफ लाइट चेंज कर लिए। तो लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of a medium, refractive index of a medium depends on color of light used. Color of light used. ठीक है। अगर आपका सराउंडिंग फिक्स है यानी एयर मान लेते हैं और ब्लू रेड ऑरेंज सब कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी ग्लास का निकाल रहे हो तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का आता है। तो यू राइट डाउन फॉर वायलेट कलर and for a particular surrounding a medium has a highest refractive index. Write down for violet color for violet color refractive index of a medium is maximum. वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है तो मिनिमम होगा रेड कलर के भी जो सीक्वेंस है वो याद रखें आपको उसी हिसाब से सबसे कम किसका होगा तो रेड कलर का होता है। ठीक। अब तुमको मैं इतना क्यों बताएं उसका रीजन ये है कि आप फोकल लेंथ पढ़े थे मिरर में और आगे जो हमारा टॉपिक आएगा लेंस का भी फोकल लेंथ होता है। ठीक है। तो मिरर का फोकल लेंथ और लेंस की फोकल लेंथ में फर्क होता है क्या कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। समझे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने चीज पर डिपेंड करता है सराउंडिंग पे डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि हम मिरर को पानी में डाल दिए लेंस को भी पानी में डाल दिए किसका फोकल लेंथ बदलेगा तो उसका जवाब होगा लेंस। क्यों जवाब देना लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। करेक्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी में डालने से तो बदल जाएगा क्योंकि उसका सराउंडिंग मीडियम जो है वो तो चेंज हो गया तो इसलिए लेंस का फोकल लेंथ बदलेगा मिरर का नहीं बदलेगा क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ होता है r/2 यही है फॉर्मूला फोकल लेंथ का। तो मिरर का जो रेडियस है वो पानी में डालने पर वही तो रेडियस आएगा उसमें तो फर्क नहीं आएगा तो इसलिए उसका फोकल लेंथ नहीं बदलता है। लेकिन लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रेडियस पर भी डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। तो रेडियस तो नहीं बदला लेंस का लेकिन कौन बदल गया सराउंडिंग मीडियम बदलने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ सो फोकल लेंथ भी चेंज हो गया। ठीक। और फोकल लेंथ चेंज हो गया तो बहुत सारी चीजें आपको चेंज हो जाएगी। ओके नाउ सो ये है एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दें एंड देन वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास कि जैसे मान लो कि हम ऐसे लिखे म्यू जी ए इसका मतलब है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये जो होता है वो आप पहले भी पढ़े हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप स्पीड ऑफ साइन आई बाय साइन आर से निकाल ही सकते हो स्पीड ऑफ लाइट से भी आप निकाल सकते हो सी ए यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये ध्यान में रखिएगा। CGA ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा CA/CG। अगर आपको ऐसे ही करना हो पूछे μ/1 तो बताएं इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में जैसे देखो CGA ए वाला ऊपर में यहां पे कर लेना C1/C2 सो दिस इज मच इंपॉर्टेंट regarding refractive index of light। तो अगर मान लो ये GA ये नहीं दिया सीधे म्यू दिया हुआ है
तो आप ये समझ लेना कि वो एयर के रिस्पेक्ट का ही वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि सराउंडिंग एयर है। ओके, तो एक और चीज लास्ट में चलते चलते बता देते हैं कि मान लो कि सी ए का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट। और सी जी का फॉर्मूला होगा इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दोनों को डिवाइड कर दो तो सी ए बाय सी जी, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा न्यू ए फ्रीक्वेंसी इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन ग्लास इंटू लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, नहीं लैम्डा जी, ठीक है। बट वन थिंग आई टोल्ड यू दैट द फ्रीक्वेंसी of light will not change if medium will change, so this will be cancelled। और इसको हम क्या बोलते हैं? Ca by Cg, just now I have written, this is the refractive index of glass, so mu Ga बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास। अगर किसी मीडियम में हमको वेवलेंथ निकालना है लाइट का, एयर का दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, म्यू जी ए इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। या ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा जी यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर divided by mu Ga divided by refractive index. If you are given refractive index, if you are given the wavelength of light in air, then easily you can find out what will be the wavelength of light in glass. But the frequency, once whatever in air, the same frequency will be in glass. So my dear student, go through the video one again and again and make note and try to understand. If any confusion, you call me. Thank you.